نواز اور شہباز کے بعد مائنس مریم کا وقت آ گیا۔ سیاسی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جہانگیر ترین نے کہا نون لیگ کے خیالی پلاؤ ہیں، وزیر اعظم عمران خان ہی رہیں گے۔ برطانیہ میں سول ڈیل کی بات ظاہر نہیں کر سکتے۔ چودھری برادران کے تحفظات ہیں، نہ ہی اختر مینگل کے۔ عمران خان مریم کو بھیجنے کے موڈ میں نہیں۔ شیخ رشید نے پروگرام 92 نیوز ایٹ 8 میں کہا وزیر اعظم پہلے ہی نواز شریف کو بھیج کر اداس ہیں، انہیں ڈاکٹرز کی رپورٹس پر بھی اعتماد نہیں۔ جتنا مرضی کہیں ڈیل یا ڈھیل نہیں دی گئی، لوگ نہیں مان رہے۔ شہباز شریف اور بلاول آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ ستم ظریفی ہے، قانون سازی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قانون کو مطلوب ہیں۔ فردوس عاشق اعوان کا ٹویٹ، میڈیا سے گفتگو میں کہا لندن کی بیٹھک مال بچانے کی کوشش ہے، مطلوب افراد کو قانون پکار رہا ہے، سسیلین مافیا آنے سے انکاری ہے، فضل الرحمان پارٹی سے استعفیٰ دینے کی جرأت کریں۔ مسلم لیگ نون کے مزید 2 رہنما نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ وزیر اعظم کا احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کے خلاف نیب کا انکوائری کمیشن بنانے کا حکم۔ حسین اصغر کی سربراہی میں کمیشن پی ایچ اے کے ادھورے اور جعلی منصوبوں کی تحقیقات کرے گا۔ نیب کی جاوید لطیف کے خلاف بھی تحقیقات شروع، اہل خانہ کے نام پر جائیداد بنانے کا الزام۔ آنے والے چند دن برطانیہ کی سیاست میں اہم ترین ہے۔ میئر لندن صادق خان کہتے ہیں کچھ لوگ کمیونٹی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم باہمی اتحاد اور اتفاق سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ میئر نے کمیونٹی کے مسائل اجاگر کرنے پر میڈیا کے کردار کو سراہا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا گلاسگو اور ایڈنبرا کا دورہ، تحریک انصاف ایسٹ آف سکاٹ لینڈ کے عہدیداروں سے ملاقات۔ وفد نے دیار غیر میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہ کیا، گورنر کی اوورسیز پاکستانیوں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ لوٹن کی جامع مسجد الحرا میں 2 روزہ نادرہ سرجری کا انعقاد۔ پاکستانی کمیونٹی نے شناختی کارڈ کے حصول اور تجدید کے لیے قوائف جمع کروائے۔ خواتین، بچے، عمر رسیدہ اور خصوصی توجہ کے حامل افراد مستفید ہوئے۔ بغداد میں غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس اور بڑی 11ویں شریف کا تیسرا روز، دنیا بھر سے آئے عقیدت مندوں نے دربار شریف پر حاضری دی۔ پر نور محفل میں سجادہ نشین حضرت شیخ خالد منصور الگیلانی نے اولیاء کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ چھوٹی بہر کے بڑے شاعر ناصر کاظمی کا 95واں یوم پیدائش۔ سچے جذبوں اور احساسات کی بدولت ناصر کاظمی نے اردو غزل کا دامن موتیوں سے بھر دیا۔ ادب کی تاریخ میں امر ہونے والے عظیم شاعر کا کلام آج بھی زباں زد عام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز پرائم ٹائم بلٹن کے ساتھ میں ہوں فائق محمود۔ میرا نام ثنا عثمان۔ بلٹن کا آغاز کرتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ 92 نیوز کے پروگرام 92 ایٹ 8 میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے بتایا وزیر اعظم عمران خان نواز شریف کو بیرون ملک بھیج کر اداس ہیں۔ لگتا ہے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر ڈنڈی ماری گئی۔ شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ عمران خان مریم نواز کو باہر بھیجنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا حکومت کہتی رہی کہ ڈیل یا ڈھیل نہیں ہوئی، مگر عوام یہ بات نہیں مانیں گے۔ نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے لوگوں کو مینج کیا گیا۔ شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی پارٹی حمایت کرے گی۔ شیخ رشید نے ملک کے حالات خراب ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے الزام لگایا کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی۔ اور تو اور اسلام آباد کا حال بھی بہت برا ہے۔ عمران خان تو آگے بڑا چپ چپ ہے، نواز شریف کے جانے پہ اداس ہے وہ بڑا، کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اپنے ڈاکٹر کی رپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ کس جگہ پہ کیا ہوا یہ تو بہت گہرائی کی باتیں ہیں، لیکن عمران خان کی حد تک یہ کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں ہوئی، لیکن یہ ویل پلان تھا، میڈیا ویل پلان کیا گیا،
ڈاکٹر عدنان نے ویل پلان سارا، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی اگر ان کا ڈاکٹر بھی انڈر انفلوئنس آ جاتا ہے یا وہ تحقیق صحیح طرح نہیں کر سکتا تو باقیوں سے کیا گلے شکوے کرنے ہیں، یہ مینج کر لیتے ہیں، یہ بزنس مین ہے۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مریم کی اگر کورٹ فیصلہ کر دے گی تو اس کے بعد دیکھیں گے کیا صورتحال ہے، کیونکہ کورٹس کی صورتحال جو ہے وہ بھی ایک کورٹس قابل احترام ہے، لیکن ان کا کیا فیصلہ آتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن اس وقت عمران خان مریم کو بھیجنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہے۔ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، شہباز شریف چیف آف آرمی سٹاف کے مسئلے میں ووٹ دیں گے اور پیپلز پارٹی بھی ووٹ دے گی۔ تحریک انصاف نے مائنس عمران خان فارمولا مسترد کر دیا۔ مرکزی رہنما جہانگیر ترین کہتے ہیں تحریک انصاف کا وجود عمران خان سے ہے، عمران خان نہیں تو تحریک انصاف بھی نہیں۔ جہانگیر ترین نے اتحادیوں اختر مینگل اور مسلم لیگ کاف کے ناراض ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں اختر مینگل سے آج ہی ان کا رابطہ ہوا، حکومت نے پہلے بھی ان کی بات سنی ہے، آئندہ بھی سنی جائے گی۔ تحریک انصاف عمران خان سے ہے، عمران خان نہیں تو تحریک انصاف بھی نہیں۔ جہانگیر ترین نے -1 کی باتیں جھوٹ کا پلندہ قرار دے دی۔ عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں اور یہ پورے اپنی ٹرم سرو کریں گے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے یہ خیالی پلاؤ ہیں، خوش فہمی ہے، کوشش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ خان صاحب ان کے پیچھے اکاؤنٹیبلٹی کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے بہت سی اس طرح کی اور چیزیں بھی کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا مریم نواز کے مائنس ہونے کا وقت آ گیا، جس پر بھی کرپشن کے کیسز ہیں، وہ علاج کے بہانے باہر جانا چاہتا ہے۔ ان کے پاس ان کے 2 بیٹے ہیں، بہویں ہوں گی، سب ہے وہاں پہ، مگر تیمارداری کے لیے خاص طور پہ مریم کا جانا مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی، مگر اپلائی کیا انہوں نے، ملک سے میرا خیال ہے باہر نکلنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں۔ پہلے نواز شریف مائنس ہوئے ہیں، پھر شہباز شریف مائنس ہوئے ہیں، اب مریم کے مائنس ہونے کا ٹائم آ گیا۔ جن کے اوپر کیسز ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک سے فرار ہو گئے۔ جہانگیر ترین اتحادیوں میں اختلافات کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کاف لیگ کا پی ٹی آئی سے کوئی مسئلہ نہیں، اختر مینگل سے معاملات پہلے بھی طے کیے، اب بھی طے کر لیں گے۔ آج ہی صبح میری اور سردار صاحب اختر مینگل کی بات ہوئی ہے، ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا ہے، پہلے بھی ان کے بہت سے مسائل ہم نے حل کیے، انشاءاللہ اگر کوئی بات چیز رہ گئی ہے تو اب ہم کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان کے مطالبات پر تبصرہ کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا پریشانی کی بات نہیں، مولانا کی آنیاں جانیاں لگی رہتی ہیں۔ مولانا صاحب کا جو مجھے پتہ نہیں لگتا، مولانا صاحب کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، ہم ان کا آنا جانا ہی دیکھ رہے ہیں۔ ملک میں معیشت کی بہتری کی نوید سناتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، تحریک انصاف معیشت کو ٹریک پر لا رہی ہے۔ لندن میں بیٹھی لیگی قیادت پر حکومتی ارکان کے سیاسی وار جاری ہیں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس آشری کوان کہتی ہیں پاکستان کا قانون انہیں پکار رہا ہے لیکن وہ آنے سے انکاری ہیں۔ مافیا اور چوروں کے گٹھ جوڑ کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، مراعات یافتہ ٹولہ ان چوروں کی موجودگی میں قانون کے منہ پر تمانچے مارتا ہے۔ پاکستان کی عدالتیں ان کو آوازیں لگا رہی ہیں لیکن وہ پاکستان آنے سے انکاری ہیں۔ یہ کتنا بڑا مافیا اور چوروں کا کٹ آپ نے دیکھا کہ ان کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں اور یہ میراث یافتہ ٹولہ جو ہے ان مفروروں کی موجودگی میں قانون کے منہ پہ تماچے مارتا ہے۔ وہ افراد جن کے وارنٹ پاکستان کی عدالتوں نے جاری کیے ہوئے ہیں، اس لیڈر کو جس کو بیمار کہہ کے ضمانت لی گئی، اربوں خربوں روپے کے اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے عوام کے درد کی باتیں کرتے ہیں، عوام کے مسائل کے حوالے سے ان کو وہاں دکھ جو ہے وہ چین نہیں لینے دے رہا، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں جن کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے اس ملک کے عوام آج دکھ کا شکار ہیں۔ وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلا، جنہوں نے جعلی ٹیٹیوں اور فیک اکاؤنٹس کے ذریعے اس ملک کی معیشت کو 440 وولٹ کے جھٹکے لگائے۔ چھوٹے میاں صاحب، آپ نے یہ بڑی بڑی ڈکیتیاں جو اس قوم کے ساتھ کی ہیں، اس کا جواب دیں۔ ہنسلو میں میئر آف لندن صادق خان نے ملٹی کلچرل کمیونٹی سے ملاقات کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کمیونٹی کے مسائل اور حقائق سامنے لانے میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی پر دیکھیے غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔
हौसलों में मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने मल्टी कल्चरल कम्युनिटी से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा आने वाले चंद दिन बरतानिया की सियासत में अहम तरीन हैं। The mainstream media doesn't report all the wonderful things Labour politicians are doing, all the wonderful things in our manifesto. The good news is the specialist BAME media does a wonderful job. The media around us do a brilliant job reporting the great work we're doing. Let's give them a round of applause, please. सादिक खान का कहना था कि मुकामी लोग असल हकायक जानने के लिए मुकामी मीडिया पर इन्हिसार करते हैं। इनका मजीद कहना था कुछ लोग कम्युनिटी को तकसीम करना चाहते हैं मगर हम बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से इसका मुकाबला करेंगे। There are some people who try and divide communities, who try and drive a wedge between communities, between Jews and between Christians, between Muslims, between Hindus, between Sikhs and Buddhists. We Labour believe that we are a united family. इस मौके पर सीमा मल्होत्रा, काउंसलर समिया चौधरी, काउंसलर रघुविंदर सिंह, सुमीना नागरा और दीगर हौसलों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्कॉटलैंड में तहरीक इंसाफ ईस्ट ऑफ स्कॉट के ओहदेदारान से मुलाकात की और ओवरसीज पाकिस्तानियों को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी खालिद परवेज। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्कॉटलैंड के शहरों एडिनबरा और ग्लासगो का दौरा किया, जहां तहरीक इंसाफ ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के सदर फ़खर इकबाल चौधरी की क़यादत में एक वफद ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर पंजाब को दयार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह किया गया। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान में कब्जा माफिया का राज खत्म हो चुका है। की ताकत गवर्नर ऑफिस से ज्यादा है, गवर्नर ऑफिस से ज्यादा ताकत, ये मैं अपनी तकरीर में कहा, लेकिन मैं अब कहता हूं कि नहीं है। अब कब्जा माफिया को हमने क्रिपल कर दिया है। चौधरी सरवर ने मजीद कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस पर 6 माह में फैसला हो रहा है। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। खालिद परवेज, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड। ल्यूटन की जामिया मस्जिद अल हिरा में 2 रोज़ा नादरा सर्जरी का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शनाख्ती कार्ड के हुसूल और तजदीद के लिए कवायद जमा करवाए। चौधरी निसार की रिपोर्ट। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में नादरा कार्ड सर्जरीज के इनेकाद से हज़ारों पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद होते हैं। इनमें ज़्यादातर ख़वातीन, बच्चे, उम्र रसीदा और खसूसी तवज्जो के हामिल अफराद शामिल हैं। लूटन के अल हिरा एजुकेशन सेंटर में भी नादरा सर्जरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई और नादरा कार्ड की तजदीद और हसूल की सहूलत से मुस्तफ़ीद हुई। आज ये सर्जरी का दूसरा दिन है और तकरीबन 400 के करीब बड़े और बुज़ुर्ग और सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है और फैसिलिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ नादरा की टीम आई है, उससे लोकल कम्युनिटी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं कार्ड को रिन्यू करने के लिए और कुछ नए बनवाने के लिए, जिसे हम नादरा की टीम का शुक्रगुजार हैं। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है लोगों के लिए कि यहाँ से लंदन जाना, वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम, दीगर मसाइल, और यहाँ पर वो इजीली आते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि लोगों को भी अच्छी तरह फैसिलिटेट करें और नादरा टीम को भी। नादरा की टीम आज यहाँ लूटन में आई हुई है और यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत सारे लोगों ने आईडी कार्ड बनाए हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, और सैटरडे संडे वाले दिन उनको आज अपने घर के बिल्कुल पास ये सहूलत दी गई है और लोग बहुत खुश हैं। नादरा सर्जरीज बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन का अहसन इकदाम है, जिससे हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद होकर न सिर्फ अपना वक्त बचाते हैं बल्कि ख़ानदानों के लिए भी आसानी पैदा होती है। चौधरी निसार, 92 न्यूज़, लूटन। लीड्स में काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमा 12 दिसंबर को होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुतहरिक हैं। हमारे नुमाइंदे आसिफ कुरैशी उनके साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं। जी आसिफ, बताइएगा। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लीड्स से साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इकबाल और ईस्ट लीड से काउंसलर आरिफ हुसैन और समाजी शख्सियत लेबर पार्टी के मेंबर चौधरी आबिद साहब, चौधरी अरशद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जो बरतानिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामिक सेंटर डॉक्टर खान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उस हवाले से ये क्या कहते हैं कि किस पार्टी की सपोर्ट करनी चाहिए, बरतानिया में जो तारकीन वतन है बिलखुसूस उनके लिए कौन सी पार्टी ज़रूरी है। जी इकबाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे इस हवाले से पूछता हूँ कि हमें किस पार्टी की सपोर्ट करनी है। देखो, मैं एक लेबर काउंसलर हूँ, लेकिन ये एक और बात है, मेरे ख्याल में पार्टी वो होनी चाहिए जो अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छी हो। और वाज़ेह है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है उनके वो इस्लामोफोबिया का सीरियस इशू है उनमें,
उनके लीडर में प्रॉब्लम है, वो इस्लाम के बारे में उसने बहुत ही गलत बातें की हैं। लिहाजा मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि लेबर पार्टी की सपोर्ट करें। जी काउंसलर आरिफ साहब, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ ये है जी कि हमको जो हम चाहे वो लीड में रह रहे हैं या कि पूरी यूके में रह रहे हैं, हमें पार्टियों के मंशूर को देखना चाहिए। पार्टियों का मंशूर जो है ना वही आगे जाकर सेटअप होता है गवर्नमेंट में। तो इस लिहाज से मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम सुनने वालों से जिनके कानों में ये आवाज़ जाएगी कि पार्टियों को जो मेन दो पार्टियां उनके मंशूर देखें कि उसमें जिस तरह आप मंशूर की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी ने जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, NHS है, या जो स्टूडेंट, इस हवाले से थोड़ा सा नहीं, नेशनल हेल्थ हो गया। जिस तरह उन्होंने लास्ट वीक को ये अनाउंस किया है जी कि भाई अगर वो दोबारा पावर में आते हैं तो ये जो ट्यूशन फीस है स्टूडेंट की वो ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह को सोशल हाउसिंग की उन्होंने बात की है जो इस मुल्क में बहुत बड़ी एक क्राइसिस आने वाला है, उस लिहाज से इस्लामी लिहाज से जो हम पाकिस्तानी, कश्मीरी या और दुनिया के मुसलमान इस मुल्क में रह रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनके अंदर जो इंसाफ की बात हो रही है या सोशल एडजस्टेड हैं उनकी ये बात हो रही है, ये चीज़ें हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी, आप पुराने लेबर के मेंबर भी हैं और कारोबारी शख्सियत भी हैं, आप क्या समझते हैं कि बरतानिया के लिए कौन सी पार्टी जो है वो बेहतर तरीके से काम? इस वक्त जो अनसर्टनिटी है जी आसिफ साहब, वो ये है कि ब्रेग्जिट की पिछले साढ़े तीन साल से अब ये पूरी आवाम, ये 70 मिलियन तकरीबन लोग हैं इस मुल्क के, उनको अनसर्टनिटी है, उनको पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। देखिए 75 साल के हमारे ईस्टर्न यूरोप के साथ हमारे जो अब वहाँ पे एक मार्केट है, सिंगल मार्केट से काम कर रहे हैं, उनके साथ अपनी यूनियन है, उसके अगर एकदम आप कट ऑफ करेंगे तो ज़ाहिर है कोलैटरल डैमेज होगा, अनसर्टनिटी पैदा होगी। कम्युनिटी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी अनसर्टन, अनश्योर है। उसके साथ जो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो हालात हैं, लेबर पार्टी का जो मंशूर, एक बहुत बड़ी बात यह है कि वो जो है फ़लस्तीन को एक स्टेट जो है वो उसको स्टेट का मैं कहता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ देंगे उनको, और स्टेट मानेंगे कि वाकई ही फ़लस्तीन जो है ना एक स्टेट है जिसको अभी मैं कहता हूँ कि सालों से और सदियों तो नहीं कह सकता कि मैं ये समझता हूँ कि पूरे 75-80 साल से ये उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। कश्मीर का बहुत बड़ा इशू है, कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको खुद मुख्तियारी होनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ जी कि सिर्फ लेबर पार्टी है जो कश्मीर के इशू पर बात कर रही है, और जर्मी कोर्बन ने 12 कहा है जी कि कश्मीर में जो ह्यूमन राइट वैल्यूएशन हो रही है उसको बंद होना चाहिए। तमाम लोगों का यही ख्याल है कि लेबर पार्टी इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के मसाइल सिर्फ लेबर पार्टी हल कर सकती है और मुल्क को बेहतर तरीके से खिदमत भी लेबर पार्टी कर सकती है। जी डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा भी आप जो भी आबिद साहब ने कहा है और सफीर साहब ने कहा है वो सब सही है, और मैं भी उनकी तायद में हूँ। बरतानिया के इंतखाबात की गहमा गहमी अपने उरूज पर है। पाकिस्तानी नयाद मसीही खातून उम्मीदवार नौशाबा खिलजी ने भी अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। कहती हैं डॉक्टर होने के नाते वो NHS के मसाइल को बेहतर समझती हैं। इसी पर देखिए दिल डैनियल की ये रिपोर्ट। नौशाबा खिलजी कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। नौशाबा पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी हैं और इनका ताल्लुक मसीही घराने से है। इनका मानना है कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी इक्तदार में आई तो अवाम का मेयार जिंदगी बेहतर होगा। नौशाबा NHS कंसल्टेंट हैं और बतौर डॉक्टर वो बरतानिया में अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रही हैं। नौशाबा का कहना है कि एक डॉक्टर होने के नाते वो NHS को दरपेश मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। इनका कहना है कि वो हमेशा NHS के मरीजों और अमले के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। ओवरसीज पाकिस्तान बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जमा खान की नई किताब दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बलोच इंसर्जेंसी अगले माह मंजर आम पर आएगी, जिसमें उन्होंने बलोचिस्तान में गैर मुल्की ताकतों की साजिश को बेनकाब किया है। मॉस्को में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने किताब के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। आइए देखते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉस्को में, जहाँ ओवरसीज पाकिस्तान बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी मेरे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर जुमा खान मरी बलोचिस्तान के मरी कबीले के सरबराह भी हैं। अरसा 20 साल से डॉक्टर जुमा खान मरी आज़ाद बलोचिस्तान का नारा लगाते रहे, और 2 साल पहले इन्होंने आज़ाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। डॉक्टर जुमा खान मरी 2 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं कि भटके हुए बलोच, जो बलोच भाई
भटके हुए हैं इनको राह रास्त पे लाएं और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में शामिल हो। इसी दौरान इन्होंने एक किताब लिखी है और किताब 1 माह बाद मंजरेआम पे आ रही है और किताब में इन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं, क्या इस किताब से पाकिस्तान के बलोच भाइयों के जो बलोचिस्तान में नौजवान नस्ल है उसको उस पर मुस्बत असरात पड़ेंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो होने वाला प्रोपेगेंडा है इसका ख़ात्मा होगा। चलते हैं डॉक्टर जुमा खान मरी की तरफ, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर जुमा खान साहब, आपने किताब लिखी है और किताब कहाँ तक तकमील पहुँची है और कब मंजर आम पे आएगी? जी किताब तकरीबन तैयार है, अब प्रिंट हो रही है। इंशाअल्लाह उनकी लॉन्चिंग सेरेमनी 23 जनवरी 2020 में होगी और किताब का नाम है दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बलोच इंसर्जेंसी, यानी कि बलोचों के जो इंसर्जेंसी है जिसमें जो किसी को पता नहीं है, जो अनटोल्ड स्टोरी है उसमें ये सारे मटेरियल हैं। और ये बलोचों के लिए एक ऐसी किताब है जो उनको सब कुछ दिखाएगा कि ये सारा गेम शुरू कैसे हुआ और इस गेम में कौन कौन इन्वॉल्व हैं, इस गेम में बलोचों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया है। और इस किताब में ये वाज़े किया गया है कि किन किन बाहर की ताकतों के हाथ मुलव्वस हैं इस किताब में। तो डॉक्टर साहब, जो बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं बलूचिस्तान में दहशत गर्दी कराने के लिए, क्या उन ताकतों को नंगा कर रहे हैं, उनके आप किताब में लिख रहे हैं? बिल्कुल जी, सारे इंफॉर्मेशन जो है ना एक अच्छे तरीके से पिछले 20 साल से का एनालिसिस मैंने किया और उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया कि इस किताब के अंदर के कौन कौन से मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ास कर बलोचों को, पश्तूनों को, चाहे सिंधियों को किस तरह बहकारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कलभूषण ने जो इंकशाफ किए थे बिल्कुल उसी तरीके से हमने क्लासिफाई कर दिया सारा चीज़ इस किताब में। और बलोचों के लिए एक पैगाम है कि भाई तुम अब अपना फ़ैसला खुद करो, तुम चंद लोगों के बहकाव में आओगे या अपने घर आबाद करोगे। तो किताब में सारा कुछ किस ज़ुबान में आप ये शाया कर रहे हो? जी बेसिकली तो इंग्लिश में है, इसको बाद में शायद उर्दू, चाइनीज़ और रशियन में ट्रांसलेट की जाएगी। डॉक्टर साहब, बैरूनी ताकतें, आप ऐसे कोई हकायक जो आप इनके सामने आने से, दुनिया के सामने आने से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसको रद्द कर सकेंगे? जी इस किताब में पूरे हकायक दलाइल प्रूफ के साथ मौजूद हैं, तो मेरे ख़्याल में कोई भी संजीदा इंसान इसको रद्द नहीं कर सकता। हाँ ज़ाहिर है कि किताब के बाद शायद दुश्मन अपनी टैक्टिक बदल ले, कोई और तरीका, क्योंकि जंगें ख़त्म नहीं होती, जब तक इंसान ज़िंदा है तो जंगें चलती रहती हैं। लेकिन हमें दुश्मन को महदूद करने के लिए दुश्मन को उनके जो राज हैं वो किताब में हम लिख रहे हैं, इसलिए कि आइंदा जो है ना जो गरीब बलोच हैं, जो नौजवान बलोच हैं जो भटके हुए हैं, उनको एक आइडिया है कि भाई तुम लोग किस तरह बेवकूफ़ बनाए गए थे और किस तरह तुम लोग बचकर अपनी ज़िंदगी बचा सकते हो, अपनी कल के लिए क्या काम कर सकते हो। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ थे डॉक्टर जुमा खान मरी और 23 जनवरी 2020 को डॉक्टर जुमा खान मरी की हकायक पर मबनी नए इंकशाफात और दुनिया के सामने जो बलूचिस्तान में ऐसे राज जो बलोचों को भी नहीं पता, वो उन राजों से पर्दा उठाएंगे और देखते हैं डॉक्टर जुमा खान मरी की ये किताब कितना तहलका मचाती है और पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को दुनिया के सामने और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको नंगा करके दुनिया के सामने पेश करती है। जी महबूब सुबहानी गौसुल आज़म सुल्तानुल औलिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की सहरोज़ा तकरीबात बगदाद शरीफ में जारी हैं। उर्स मुबारक के तीसरे दिन भी दुनिया भर से आए अकीदतमंदों ने मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देकर फ़यूज़ व बरक़ात समेटी। 11वीं शरीफ की सालाना महफिल दरबार शरीफ की मस्जिद में सजाई गई, जिसमें पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और अरब मुमालिक समेत दुनिया भर से आए ज़ायरीन ने शिरकत की। सज्जादा नशीन हजरत शेख खालिद मंसूर अल गिलानी ने खिताब फरमाया और सीरत औलिया कराम पर अकीदतमंदों की रहनुमाई फरमाई। बड़ी 11वीं शरीफ की रूहानी महफिल में शुरका ने खुसूसी कलाम पढ़कर हाजरीन पर वजद तारी कर दिया।
बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की सिलेक्शन पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं चीफ सिलेक्टर और हेड कोच मिसबाह उल हक पर तनकीद कबल वक्त है, उन्हें मजीद वक्त देना चाहिए। सरफराज नवाज का मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। मिसबाह उल हक ने श्रीलंका के खिलाफ जो पाकिस्तान टीम का ऐलान किया है, वो मैं कहता हूँ कि एक बड़ी अच्छी टीम का ऐलान किया है, और उसमें फवाद आलम जो 10 साल के बाद टीम में शरीक किया गया है, ये भी उसकी परफॉर्मेंस पे है कि उसने अच्छा स्कोर किया हुआ है 10 साल में। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि मिसबाह उल हक को कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी ये बहुत जल्दी है, क्योंकि मिसबाह उल हक ऑस्ट्रेलिया के टूर पे था और ऑस्ट्रेलिया की टीम ज़बरदस्त टीम थी, उन्होंने इंग्लैंड में भी एशेज जीती है, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम में यंग प्लेयर बहुत ज़्यादा थे। तो मैं यही कहूँगा कि इसको अभी ज़रा इंतज़ार करें, और जैसे मिसबाह ने कहा कि उसको कुछ वक्त देना चाहिए, और उसके बाद कुछ जादू की छड़ी तो है नहीं कि एकदम सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो मैं कहूँगा कि कुछ वक्त देना चाहिए और ज़रूरी है। और इस सीरीज़ में मैं पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई है 10 साल के बाद, और ये बड़ी खुशआइंद बात है। इसके बाद फिर PSL पाकिस्तान में होगा, उसके बाद फिर दूसरी और टीमें भी पाकिस्तान आने की कोशिश करेंगी। सऊदी अरब के शहर दमाम में पहला मारखोर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, जिसमें 10 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 17 जनवरी को खेला जाएगा। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब के शहर दमाम में साबसा क्रिकेट अकेडमी की जानिब से पहला मारखोर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया, जिसमें 10 टीमें शिरकत कर रही हैं। टीमों में शामिल पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और श्रीलंकन खिलाड़ियों ने बॉलिंग और बैटिंग में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स आसिफ, फारूक, जिब्रान और दीगर का कहना था दमाम रीजन में अच्छे ग्राउंड्स ना होने की वजह से खिलाड़ियों का टैलेंट ज़ाय हुआ। उन्होंने कहा, हमने अपनी मदद आपके तहत ग्राउंड्स बनाकर खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात फराहम की। 1.5 से 2 किलोमीटर हम लोग ये जगह को पूरा क्लीन बना के 2 महीने लगा था हम लोगों को क्लीन करके। यहाँ 8 ग्राउंडें बना चुका है अभी हम लोग। एवरीवेयर यू कैन सी देयर हैव बीन टूर्नामेंट्स गोइंग ऑन, but nobody has a plan to give the quality cricket like floodlights and discipline on the grounds. Our grounds are smoking free. ऑर्गेनाइजर्स ने मजीद कहा, मारखोर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल 17 जनवरी को खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और भारत के बड़े क्रिकेट स्टार्स बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। ये हमारा 3rd टूर्नामेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 टूर्नामेंट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं T10 के हवाले से, जो कि नए टूर्नामेंट थे, और अभी ये T20 है जो कि जिसका 17 को फाइनल है इंशाल्लाह। और 17 में हमारे पास इंशाल्लाह सरप्राइजेज़ है, यहाँ पर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान की और इंडिया की वो भी होंगे हमारे साथ। टूर्नामेंट के इनेकाद पर खिलाड़ियों ने भी खुशी का इजहार किया। उनका कहना था, जब मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं तो इससे मुस्बत सोच को फ़रोग मिलता है। उमैर अली, 92 न्यूज़, दमाम, सऊदी अरब। दयार गैर में अदबी महाफिल का इनकाद हुआ कि उस ताज़ा झोंके की मानद है जो मसरूफियात से भरी जिंदगी में नई रूह फूंक देता है। ऐसी एक तकरीब का इनकाद बार्सिलोना के सिटी हॉल में किया गया। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। 7 समंदर पार अदबी महाफिल का इनेकाद हवा का वो ताज़ा झोंका है जो मसरूफियात से भरी जिंदगी में एक नई रूह फूंक देता है। ऐसी ही एक तकरीब का इनेकाद उर्दू अकेडमी, नकाश स्टूडियो और दिया ऑनलाइन के ज़ेरे एहतमाम बार्सिलोना के सिटी हॉल में किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी जर्मनी से आए मारूफ शायर और सहाफ़ी आतिफ तौकीर थे, जबकि प्रोग्राम की सदारत कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इमरान अली चौधरी ने की। The boy who comes here is intellectually he's starting his journey. So he wants to know about Pakistan from the Pakistani community of Barcelona. मकामी शुराए कराम ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद समेटी, जिनमें डॉक्टर इरफान मजीद राजा, फैयाज मलिक, सैयद शिराज, अरशद साहिल और आमिर अकील सानी शामिल थे। बैठे रहते हैं तेरी राह में अक्सर तन्हा, इसी उम्मीद पे शायद तू इधर से गुजरे। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ सोचों का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तानियत इतनी कमजोर नहीं कि वो किसी मुखालिफ नजरिए की बात करने से कमजोर हो जाए। मुखालिफ नजरिए की बात करेंगे तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। पाकिस्तान
मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है। उन्होंने इस शाम को उन लोगों के नाम किया जो यूरोप आकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं, जैसे कि कोई नौज़ायदा बच्चा हो। तौकीर आतिफ ने पाकिस्तान को खूबसूरत रंगों का गुलदस्ता करार दिया और खूबसूरत कलाम से हाजरीन से खूब दाद समेटी। ऐ शहीदे गमे तकसीरे हुर्रियत के सिपर, तेरे कौकब तेरे रक्षंदा जुनू का सर है, तेरे छतनार के पैरों में लहू है तेरा, तेरे दुश्मन तेरे अतराफे इरादत पर हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।